हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। A very good morning students. So today we are going to start with the chapter 12 of English language, that is conjunction. First of all, what is conjunction? Rather than saying on the whiteboard, just relate it from my words. Conjunction एक ऐसा point है, it is a point which connects the two places, right? हम लोग सुने होंगे बहुत सारा junctions वगैरह है, right? तो junction क्या होता है? एक ऐसा point जो किसी two places को connect करता है आपस में. So relating with the definition of the conjunction, a conjunction is a word which connects words, phrases, clauses or sentences. Conjunction एक ऐसा word है जो two or more words को connect करता है, two or more clauses को connect करता है, two or more phrases को connect करता है और two or more sentences को connect करता है. ठीक है? So don't get confused. Conjunction कभी word को phrase से connect नहीं करेगा, word को sentence से connect नहीं करेगा, sentence को phrase से नहीं करेगा. ठीक है? वो क्या करता है? word को word से always, phrase को phrase से, clause को clause से and sentence को sentence से. ठीक है? So some examples are here: and, but, or, otherwise, therefore, etc. Ram and Shyam are going to school. Ram noun है, Shyam भी noun है. Ram is a word and Shyam is a word. तो and क्या कर रहा है? Ram and Shyam को connect कर रहा है. So it is a conjunction. ठीक है? I went to market and it started raining. I went to market एक sentence है या फिर एक clause कह सकते हैं. बीच में क्या लगा है? And it started raining. It started raining भी एक sentence है और एक clause है. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है. कौन सा वर्ड? एंड. ठीक है? तो कोई ऐसा वर्ड जो वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करे, फ्रेज को फ्रेज से कनेक्ट करे, सेंटेंस को सेंटेंस से और क्लॉज को क्लॉज से कनेक्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन. सो नाउ कमिंग टू द काइंड्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. नंबर 1 कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड नंबर 2 सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. ठीक है? Now further talking about the coordinating conjunction, the coordinating conjunctions क्या होता है ये? Which joins clauses of equal rank are called coordinating conjunction. For example, my friend is poor but he is honest. इसमें क्या हो रहा है? इसमें दो clauses हैं. ठीक है? एक ही person के बारे में बात हो रही है, एक ही person के qualities के बारे में बात हो रही है. तो my friend is poor ये एक क्लॉज हो गया, he is honest ये दूसरा क्लॉज हो गया. इसको कनेक्ट किससे किया गया? the word but. So but is a coordinating conjunction. ठीक है? Hope you are getting it. So talking about the coordinating conjunction is further divided into 4 kinds or 4 types. Coordinating conjunction 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसके 4 टाइप्स होते हैं: cumulative conjunction, alternative conjunction, adversative conjunction and irrative conjunction. Okay, so coordinating conjunction हम लोगों ने क्या पढ़ा था? A coordinating conjunction which joins clause of equal ranks. ठीक है? ये दो clauses को join करता है. Now the coordinating conjunction is further divided into 4 parts. पहला पार्ट है cumulative conjunction. Cumulative conjunction क्या करता है? They add one clause to another. एक किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस, उसमें उसके अंदर क्लॉज होता है. ठीक है? इट माइट हैव 1 क्लॉज और 2 और 3 कितना भी हो सकता है. तो वो क्लॉजेस किससे ज्वाइन होते हैं? कंजंक्शन से. ठीक है? कोई भी सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं और हमको उसमें लगता है कि 2 अलग अलग सेंटेंसेस लिखा है, तो वो अलग अलग सेंटेंसेस नहीं होते, वो क्लॉज होते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि एक क्लॉज के बिना दूसरा क्लॉज अधूरा रहता है. ठीक है? तो हमको क्या जरूरत पड़ती है? एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है कि दोनों को आपस में जोड़ा जाए और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके. ठीक है? तो लेट्स सी द cumulative conjunction. He not only drank the milk but also ate the food. तो यहाँ पर हम बस ये लिखते हैं he drank the milk, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है. ठीक है? बट अगर हम सिर्फ ये सेंटेंस लिखते हैं also ate the food, तो ये क्या कोई सेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. तो इसके लिए हमको ये दोनों सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा, दोनों क्लॉजेस को, और बीच में कंजंक्शन का यूज होगा. ठीक है? Now the second type is alternative conjunction. Alternative conjunction क्या करता है?
दे एक्सप्रेस, वर्ड से हमें पता चल रहा है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब दो में से कोई एक, तीन में से कोई एक, ठीक है, कोई एक चॉइस करनी है आपको। तो दे एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, टू अल्टरनेटिव्स दिए हैं, आपको उसमें से एक चॉइस देना है, दैट इज व्हाट अल्टरनेटिव कंजंक्शन इज। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल, आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, या तो तुम हार्ड वर्क करो या तो फेल हो जाओगे। तो ये जो आइदर और है ये क्या कर रहा है, इन दोनों अल्टरनेटिव्स को, हार्ड वर्क मतलब वर्क हार्ड और यू विल फेल दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आइदर और, नीदर और, ये सब क्या हो गया आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक है। थर्ड वन इज एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्स मतलब अपोजिट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मतलब दो अपोजिट सेंटेंसेस को, दो अपोजिट क्वालिटीज को कंजंक्ट करना, ज्वाइन करना, दैट इज व्हाट एडवर्सेटिव कंजंक्शन डज। दे एक्सप्रेसेस opposition or contrast between two statement, दो unlike statement को join करता है, express करता है कौन, adversative conjunction। He was angry, still he kept quiet, तो here still is the adversative conjunction, क्यों, क्योंकि ये दो contrasting sentences, contrasting clause को join कर रहा है। वो angry है फिर भी वो शांत है, जबकि एंग्री होना और शांत होना दोनों बहुत ही ऑपोजिट चीज है, ठीक है। तो स्टिल इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, इलेटिव कंजंक्शन, ये लास्ट है आपका। दे एक्सप्रेस एन इन्फरेंस, ये क्या करता है आपका इन्फरेंस मतलब कोई भी काम हो रहा है वो किस चीज के लिए हो रहा है, जो कॉज होता है ना, किसी एक स्टेटमेंट लिखा होगा और उस स्टेटमेंट का कॉज को, उन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो क्या होता है Elative conjunction. No care must have been taken for cholera spread rapidly. कोई cholera बहुत ही जल्दी फैल गया, क्यों, because no care must have been taken। यहाँ ये जो forward है that is elative conjunction। Okay, now coming to the second type, that is subordinating conjunction। ये क्या करता है, it connects a clause to another on which it depends for its full meaning। अभी हमने क्या बताया, एक सेंटेंस में there might be a clause, एक clause हो सकता है, there might be two or three, ठीक है। तो इन clause को कनेक्ट करने के लिए what we use the conjunctions, ठीक है, जो clauses को कनेक्ट करते हैं वो वर्ड से कहलाते हैं conjunction, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में अगर दो clause है तो विदाउट द वन क्लॉज, चाहे वो बाद में लिखा हो या चाहे पहले लिखा हो, द अनदर वन इज इनकम्प्लीट, मतलब अगर हम लोग पहला वाला क्लॉज नहीं लिखेंगे तो दूसरा वाला क्लॉज जो है सेंटेंस का, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो हमें उस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए वी हैव टू ऐड द अनदर क्लॉज, द सेकंड क्लॉज, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यही कहता है कि एक क्लॉज को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें दूसरे क्लॉज को कनेक्ट करने की जरूरत होती है, और जो इन दोनों क्लॉज को कनेक्ट करता है दैट वर्ड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई शैल अटेंड हिज मैरिज, पहला क्लॉज तो ये हो गया आई शैल अटेंड हिज मैरिज, हम उसकी मैरिज अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ये मीनिंगलेस लग रहा है, मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। तो हमने क्या किया, he invites me, if he invites me, इसका क्या मतलब हो गया, हम उनकी मैरिज को अटेंड कर सकते हैं अगर उन्होंने हमें बुलाया। तो ये द वर्ड अगर, इफ, ये जो वर्ड है इफ, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये इन दोनों क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस क्लॉज के बिना इसका कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है। अगर हम सिर्फ लिख देते he invites me, ठीक है, तो विदाउट आई शैल अटेंड हिज मैरिज, इस क्लॉज के बिना he invites me का कोई मतलब नहीं है, एंड he invites me के बिना I should attend the marriage का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों क्लॉजेस को कौन ऐड कर रहा है, if। तो the words like when, while, where, though, because, this all comes under the subordinating conjunction। So okay, here we are going to end the session. Stay tuned and yeah, just go through the book also and revise.